Focus and determination were the two things that I learned by pursuing a keen exercise routine. A takeaway that is so simple, yet one that had the power to have a profound impact on my life. This was my inspiration behind my wanting to share this takeaway. A casual conversation with a non-profit organization based in Nagpur, Central India, led to me understanding the many issues that children are facing during the second lockdown. This insight was given to me by the project coordinators of Akshar. Project Akshar is a unique initiative for children studying in government schools who, due to very large class sizes and limited infrastructure, have to make do with only one or two schools in their entire vicinity. Project Akshar grooms these children predominantly in the areas of mathematics, science, as well as extracurricular activities in order to make the joys of learning accessible to all. Talking to the project coordinators helped me realize that even though the sole motive for parents during the lockdown was academic success, this goal was unattainable due to attention problems, distraction, and severe exhaustion faced by the children at home. After the pandemic hit, these children who were used to an active exercise routine or a moderately active exercise routine were now trapped at home, which led to a harsh impact on their marks, distraction problems, aggression, and a lot of uncertainty in general. Having interacted with this particular bunch since a young age, it made me want to share my personal takeaway with them. Running was the form of exercise that helped me harness my vulnerabilities and turn them into strengths. It helped me transcend the distraction in order to become more focused and more productive. Hence, we came up with Project Vyayam Se Vikas, a broader platform that offers free online physical activity classes and much more to these children and many more like them in order to help them alleviate these problems and adopt a more productive way of life. Hello everyone, my name is Nisha Thakur. I am working as Program Manager at Chitnavis Trust. During the pandemic, Corona, everyone has suffered some or the other way. We have gone through a difficult phase of our lives. We are an NGO and working with children. You all understand the students, the children, kids, they also had number of issues because of Corona. They couldn't go to school, couldn't meet friends, no lunch box, nothing. At our center, when they used to come every day, they used to have fun, learn, everything. They used to really enjoy being here. They were missing the center and we were missing them too. When we started these activities, 35 to 40 kids just jumped into this, I can say, initiative, and the parents also felt that such kind of activities are going to make a difference in their lives. We wanted to reach out to many more, but we had our own limitations. How to reach out? So I think Vyayam Se Vikas videos are going to prove beneficial to all the students, children, kids who can't come to such kind of platforms. I am so happy that because of these videos, we are going to reach out to many more. Thank you. नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी कामले है। मैं सर गंगाधर चिटनविस ट्रस्ट में एज अ कोऑर्डिनेटर काम कर रही हूँ। 5 साल पहले हमारे ट्रस्ट ने आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए अक्षर अ लर्निंग सेंटर यह प्रोजेक्ट शुरू किया था, लेकिन कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, जिसकी वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद हो गए। इसी वजह से हमें हमारा प्रोजेक्ट भी कुछ महीनों के लिए बंद करना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद फिर स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू कर दिया। लेकिन इन बच्चों के पास स्मार्टफोन न होने की वजह से वह ना तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर पा रहे थे, फिर हमें पेरेंट्स के भी फ़ोन आने लगे कि बच्चे घर पर रहकर ना ही किसी प्रकार का व्यायाम कर रहे हैं, ना ही कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा है करके। तो हम भी सोच में पड़ गए कि हम इस कोरोना के काल में बच्चों की किस प्रकार सहायता कर सकते हैं। तो इसी दरमियान हमारी ट्रस्ट की जो सपोर्टर है इलिशा नेरकर जी, उन्होंने हमसे संपर्क किया और उन्होंने हमें सुझाव दिया कि हम इन बच्चों के लिए ऑनलाइन स्पोर्ट्स और डांस की क्लासेस हम कंडक्ट कर सकते हैं।
लेकिन सबसे पहले हमारे सामने ये सवाल था कि बहुत सारे बच्चों के पास स्मार्टफ़ोन नहीं है, तो फिर वो क्लासेस कैसे करेंगे। तो हमारे संस्था के जो बाकी के सपोर्टर्स हैं, उन्होंने हमें मोबाइल फ़ोन यानी स्मार्टफ़ोन डोनेट किए, जो हमने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए। उसके बाद एक ही मोबाइल फ़ोन से 3 से 4 बच्चे कनेक्ट होके हमारी ये क्लासेस जो हमने शुरू की वो ज्वाइन करने लगे। इस 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास की वजह से बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ है। बच्चे बहुत एक्टिव रहने लगे हैं, उनकी आँखों में एक अलग चमक दिखाई देने लगी है। और इस प्रोजेक्ट की वजह से हम इन बच्चों की महामारी जैसे कठिन समय में कुछ सहायता कर पाए, इससे हमें बहुत खुशी मिली है। धन्यवाद। इसीलिए कपालभाति प्राणायाम के लिए छाती लगाकर बैठ गए हैं। कैसे करना है? सांस को ऊपर लेना है और 3 बार छोड़ना है। ठीक है, देखिए मेरा नाम श्रद्धा साहू है। स्कूल बंद होने के 2-3 महीने बाद मैंने घर पर बैठकर बहुत मस्ती करी, पर धीरे धीरे हमें स्कूल की याद आने लगी। मैंने घर पर बैठकर ना ही पढ़ाई करी, ना ही कोई प्रकार का व्यायाम किया। मैंने डांस क्लास स्टार्ट करी। मुझे डांस करना बहुत पसंद है। डांस क्लास होने के बाद मैं रोज़ 1-2 घंटा डांस क्लास की प्रैक्टिस करती हूँ। मुझे डांस करने से बहुत पॉजिटिव फील होता है और पढ़ाई में भी अच्छे से कर पाती हूँ। इस 1 घंटे की क्लास की वजह से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम मनीषा साहू है। मैं 9वीं क्लास की छात्र हूँ और ये है मेरी मम्मी। नमस्कार, मेरा नाम ममता मुकेश साहू है। ये हमारी बेटी है। कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेजेस सब बंद हो गई थी। लॉकडाउन के बाद मोबाइल पर ऑनलाइन क्लासेस होने लगी। हमारे बस्ती के लोगों, माता पिता सब परेशान थे। बच्चे सारा दिन मोबाइल ही देखते थे। ऑनलाइन क्लासेस कर करके मैं परेशान हो गई थी। मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अलग करूं। जब मुझे पता चला अक्षर में डांस और व्यायाम की क्लास शुरू हो गई, तो मैं भगवान को धन्यवाद करती हूं कि मुझे कुछ अलग करने का मौका मिला। बच्चे को 3-4 घंटे मोबाइल से छुटकारा मिल गया। मैं डांस और व्यायाम की क्लास बहुत इंजॉय करती हूँ। इसे करने से मेरा कॉन्सेंट्रेशन पावर भी इंक्रीज हुआ है, जिससे मुझे पढ़ाई करने में भी आसानी होती है। धन्यवाद। मेरा नाम अमर यादव है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मैं अक्षर का एक स्टूडेंट हूँ। कोरोना आने के बाद हमारे स्कूल और खेलना कूदना बिल्कुल बंद हो गया था, जिसकी वजह से हम आलसी और चिड़चिड़े हो गए थे। जब मुझे पता चला कि अक्षर में शारीरिक और व्यायाम की डांस की क्लास शुरू हो रही है, तो मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। दूसरे ही दिन मैंने शारीरिक व्यायाम की क्लास ऑनलाइन ज्वाइन की और रोज़ 1 घंटा शारीरिक व्यायाम की क्लास करने के बाद मुझे तरोताज़ा महसूस होता था। पहले मुझे डांस बिल्कुल भी नहीं आता था, अब तो मुझे डांस भी आता है। थैंक यू। मेरा नाम राम बाबू गुप्ता है। लॉकडाउन लगने के बाद हमारे बच्चे घर पर रहकर किताबें पढ़कर थोड़ी बहुत पढ़ाई करते थे, लेकिन बाहर जाकर खेलना कूदना और व्यायाम करना ये सब बंद कर दिए थे, जिसकी वजह से बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया था और आलसी हो गए थे और उनका स्वास्थ्य भी डाउन होने लगा था। और इस क्लास की वजह से बच्चों को 1 घंटा व्यायाम और डांस करने का मौका मिला, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य भी सही रहता है और पढ़ाई लिखाई में भी उनका ध्यान लगता है और उनके शरीर में स्फूर्ति तरोताज़ा महसूस होता है। अभी ठीक ठाक से पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ाई में भी ध्यान लगाते हैं। हमको बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे पढ़ते लिखते हैं, तो इस क्लास की वजह से हमको बहुत फ़ायदा हुआ है। मैं सोच ही रहा था अगर कहीं डांस मिल जाए क्लास, तो टीवी में देखता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे भी बच्चे इस तरह डांस करें तो बहुत अच्छा महसूस होता। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसी क्लास हर जगह ऑल इंडिया में होना चाहिए, जिससे हर गरीब तबके के लोग
और बच्चे उनके बहुत अच्छे से अपने बच्चों को डांस और व्यायाम करा सके, उनका शारीरिक स्वास्थ्य सही रह सके। मेरी यही इच्छा है। धन्यवाद। नमस्ते, मैं लक्ष्मी कोमल गुप्ता हूँ। कोरोना की वजह से स्कूलें बंद हो गई थी और बच्चों का बाहर आना जाना, वह खेलना कूदना सब बंद हो गया था। ऐसा लग रहा था उनकी ज़िंदगी थम सी गई। 1 साल तक हमने कुछ अच्छा करते हुए नहीं देखा। जब से चिटनीस ट्रस्ट के तरफ से शारीरिक व्यायाम और डांस क्लास करने लगे तो उनमें कुछ बदलाव आ गया। एक माँ के लिए उनके बच्चे खुश और तंदुरुस्त रहें और खुशी की क्या बात हो सकती है। चिटनीस ट्रस्ट के सभी शिक्षकों एवं सहायकों की तरफ से हमारा धन्यवाद। मेरा नाम है तिथि अजय हिंगे। मैं क्लास में पढ़ती हूँ। लॉकडाउन की वजह से जब स्कूल बंद हुए और ऑनलाइन क्लास शुरू हुए तो पहले मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ डांस करना मुझे बहुत अच्छा लगा।